So hey guys, welcome to Psychopedia Sam. I am Samarpita and today we are going to start the subject Psychology Honors BPCC 106 Development of Psychological Thought. And this is the first chapter, Historical and Philosophical Context of Psychological Thought. So I'll be covering all the chapters, so make sure you subscribe, and if you want this PDF then I'll mention a number in the description. Contact there and I'll share the PDF with you. These are basically the notes. So let's start. Introduction. तो देखो साइकोलॉजी का origin क्या है. Psychology, the word is made up of two words, psyche and logos. Psyche means soul and logos means study. So initially the study of soul was called psychology. Okay. तो ये जो definition है ये over time evolve करता गया. First it was the study of soul, then it was the study of mind, then it was the study of consciousness, then it was the study of behavior. Okay. It kept evolving, but the origin, the subject psychology originated in philosophy in the past. That is what is the first point. And now it has achieved status as an independent discipline. It is a subject which is studied in science. BSc students भी इसको पढ़ते हैं and BA students भी पढ़ते हैं psychology को. तो हम psychology का historical और philosophical context क्यों पढ़े? Why study? Why? क्यों? देखो psychology जो word है उसके बहुत सारे meanings है. It means a lot of things. Mental process, behavior, creativity, attitude, disorders, personality, motivation. So many meanings are there. So a new student would get confused कि actual में psychology क्या mean करता है. So that is why it is important कि हम उन situations को पढ़े, उस history को पढ़े जहाँ पे psychology evolve हुआ है, originate हुआ है. तभी हम समझ पाएंगे कि इतने सारी meanings क्यों हैं and उनमें relation क्या है. So the philosophical perspectives में we understand the source of diversity in psychology. मैंने आपको बताया कि it was the study of soul, then mind, then consciousness, then behavior. तो इतना सारा जो diversity है ये आज भी है. आज भी ऐसे debates होते हैं कि behavior, consciousness, mind and consciousness में क्या relation है. ऐसे बहुत सारे debates हैं जिसके बारे में आपको पता चलेगा धीरे धीरे. तो इसका source क्या है, इस diversity का source क्या है, इसलिए हम philosophical perspective को पढ़ेंगे. Historical perspective को हम क्यों पढ़ेंगे? ताकि हम समझ पाए कि why different psychologists adopt different philosophical perspectives. ठीक है. विल्हेम वुंट हो गए, विलियम जेम्स हो गए, वॉटसन हो गए, ये जो prominent figures है they established different schools of psychology like structuralism, functionalism, behaviorism, psychoanalysis of Freud. तो ये इतने सारे जो schools है. So why did those psychologists adopt different philosophical perspectives? मतलब एक school था तो दूसरा क्यों आया? So that is why we need to study the historical perspectives. And we also need to understand the link of psychological thought with the socio-cultural and ideological milieu in which they developed. मतलब कि उस टाइम क्या situations थे society में, culture में, क्या ऐसे factors थे जिसकी वजह से it changed, the definition of psychology changed. So let's start with philosophical context. See, there are two perspectives. One is empiricism and one is rationalism. So basically, empiricism is a narrow view of science. Science क्या बोलता है? It is the acquisition of knowledge, right? But empiricism में it is the acquisition of only sense observations. Means जो चीज़ों को हम sense कर पा रहे हैं with our sense organs which we can see, which we can hear, touch, okay, वही उसी information को correct माना जाएगा and that is the empiricist view of science. And the controlled application of empiricism is the experimental method. ठीक है, मतलब empiricism को apply अगर किया जाए so that will be called as the experimental method, जिसको आगे चल के Wundt establish करेंगे. Rationalism is the second type of philosophical perspective. Okay, so rationalism is the broad view of science.
Broad view means it uses human reason and intellect to generate new knowledge. Empiricism क्या बोलता था कि whatever we can sense only that is true knowledge. But rationalism बोलता है कि you gain knowledge by logic and rationals. Like you have discussions, you have debates, you think, that is how you come up with knowledge. Rationalism was advocated much before empiricism. Okay, ये rationalism empiricism के पहले आया था, but empiricism dominated. Why did it dominate? Because it was a sophisticated method that was used by natural sciences. बाकी जो sciences थे like physiology, biology, physics, इन्होंने empiricist method को अपनाया. Okay, and because those sciences were seen as like proper science, that is why उन साइंस का जो मेथड था, दैट इज एम्पिरिसिज्म, दैट वाज कंसिडर्ड सोफिस्टिकेटेड. तो साइकोलॉजी में भी अगर हम एम्पिरिसिज्म को अडॉप्ट करेंगे, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द करेक्ट थिंग. नेचुरल साइंसेज मेड लाइफ मोर प्रेडिक्टेबल एंड कंफर्टेबल. तो इसलिए एम्पिरिसिज्म बिकेम मोर फेमस देन रैशनलिज्म. नाउ विल्हेम वुंड is known as the founder of experimental psychology. Okay, Wilhelm Wundt is known as the founder of experimental psychology. He was actually a physiologist. Okay, who is a physiologist? Who studies biology. Okay, who, like a doctor you can say. Development of psychology was based on empiricist perspective. So Wundt ने क्या किया? He used a method called introspection. Introspection use करके Wundt established experimental psychology. He set up the first experimental psychological lab in Leipzig in 1879. Okay, see here it is mentioned. 1879 में पहला psychology lab establish किया गया. किसने किया? विल्हेम वुंट ने. That is why he is known as the father of experimental psychology. तो इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है? व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? इन इंट्रोस्पेक्शन यू ऑब्जर्व वट एवर थिंग्स यू आर एक्सपीरियंसिंग इन योर माइंड और आउटसाइड यू, एंड यू ट्राई टू मेक मीनिंग आउट ऑफ दैट. ओके, तो अगर मैं आपको इंट्रोस्पेक्शन का प्रॉपर डेफिनेशन बताना चाहूँ, वेट, let me give you the exact definition of introspection. The process of attempting to directly access one's own internal psychological processes, judgments, perceptions or states. मतलब हमारे जो मेंटल स्टेट है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, उसको ऑब्जर्व करना एंड वहाँ से इन्फरेंसेस ड्रॉ करना, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. सो दिस वॉज वुंड्स मेथड, जिसको आगे चल के वुंड के स्टूडेंट टिचनर, आई विल राइट द स्पेलिंग, टिचनर, ही इवॉल्व्ड इट एंड एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चरलिज्म. ओके, तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना के मैं दिखा देती हूँ. देखो, ये हो गया एम्पिरिसिज्म, एंड एम्पिरिसिज्म को जब एसोसिएशनिज्म के साथ मिक्स किया गया, एसोसिएशनिज्म, आई एम टेलिंग यू व्हाट इट इज, देन स्ट्रक्चरलिज्म वाज एस्टैब्लिश्ड. एंड हु एस्टैब्लिश्ड दिस? वुंड स्टूडेंट टिचनर, एंड वुंड एस्टैब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. ओके, तो एसोसिएशनिज्म बेसिकली ये बोलता है कि जो एम्पिरिसिज्म में जो आपके एक्सपीरियंसेस है, दोज एक्सपीरियंसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है, तो एम्पिरिसिज्म बोलता है कि यू गेन नॉलेज थ्रू योर सेंस ऑब्जर्वेशंस और योर एक्सपीरियंसेस, एंड एसोसिएशनिज्म बोलता है कि ऑल दोज एक्सपीरियंसेस आर इंटरकनेक्टेड. ठीक है, एंड इन दोनों को मिक्स करके स्ट्रक्चरलिज्म आया, एंड won't use the method of introspection. I hope it is clear now. Later, he realized many limitations of the experimental method. Won't realized. Okay, so क्या limitations थे? It can study only simple mental processes like attention, perception and memory. Okay, जो simple mental processes है कि attention क्या है, memory क्या है, perception कैसे होता है. Okay,
इसको हम स्टडी कर सकते हैं यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड. बट द हायर मेंटल प्रोसेसेस, what are the higher mental processes? Like what is involved in decision making, in problem solving, ठीक है, जिनमें बहुत सारे फैकल्टीज ऑफ ब्रेन एक साथ यूज होते हैं, बहुत सारे मेंटल प्रोसेसेस आपस में इंटरलिंक करते हैं. सो दोज प्रोसेसेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन जस्ट बाय द एक्सपेरिमेंटल मेथड, बिकॉज वहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है, राइट? आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, आपने पहले क्या एक्सपीरियंस किया है वो मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें. So that is why to study higher mental processes, anthropological and historical methods needed to be studied. Anthropology मतलब क्या है? I'll tell you the definition. I prefer to use the APA dictionary, American Psychological Association dictionary, to give the exact definition to you. See, anthropology is the study of human beings. It involves the description and explanation of similarities and differences among human groups in their languages. ठीक है? So anthropological and historical methods को use करके higher mental processes को study किया जा सकता है. And he called that Volcker psychologies. ठीक है? तो ये एक development है. ठीक है? Wundt in first he established experimental psychology. ठीक है, जो एम्पिरिसिस्ट व्यू से आया, एम्पिरिसिज्म फिलोसफी का पार्ट है, तो वहाँ से एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आया जो वुंड ने इस्टेब्लिश किया. देन ही रियलाइज्ड दैट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज़ नॉट सफिशिएंट टू स्टडी हायर मेंटल प्रोसेसेस, एंड दैट इज़ वाई ही एस्टैब्लिश्ड वोल्कर साइकोलॉजीज और कल्चरल और सोशल साइकोलॉजी. नाउ वुंड इज़ डन. नेक्स्ट इज़ जॉन वॉटसन. वॉटसन वॉज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म. Now behaviorism is the purest form of empiricism. ठीक है, तो जैसे वुंड के बारे में हमने बोला कि that came from empiricism, experimental psychology, and later structuralism came. Behaviorism also came from empiricism. Okay, so what does behaviorism say? It says कि observable behavior जो है, ठीक है, मतलब जो actions एक human being करता है, that is to be studied. ओके, तो ये पूरा हम जो देख पा रहे हैं उसी को स्टडी करने की बात हो रही है. सो दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एम्पिरिसिज्म. नाउ जॉन वॉटसन मेड एफर्ट्स टू मेक साइकोलॉजी अ फुल्ली साइंटिफिक डिसिप्लिन. जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो चीज़ को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सिर्फ उसी को अगर स्टडी करेंगे, दैट मीन्स इट इज़ अ प्योरली साइंटिफिक डिसिप्लिन. सो ही वॉन्टेड साइकोलॉजी टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. He opposed the study of mental structure and its functions. ठीक है, तो mental structure जो structuralism में या फिर जो वुंट ने बोला, he opposed that. Why? Because आप mental structure को observe नहीं कर सकते हो, right? You can have experiences, but you can those experiences cannot be verified by someone outside you. अगर आपके कुछ experience है आपके mental structure के बारे में, तो उसको मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकती हूँ. सो इट कैन नॉट बी, इट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव, इट इज़ सब्जेक्टिव. सो दैट इज़ वाई मेंटल स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर वॉज अपोज्ड बाय जॉन वॉटसन. ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर टू बी पार्ट ऑफ साइकोलॉजी. नेक्स्ट केम द गेस्टाल्ट स्कूल. नाउ गेस्टाल्ट सेज दैट थिंग्स आर टू बी परसीव्ड एज होल, नॉट जस्ट समेशन ऑफ द पार्ट्स. ओके, तो यहाँ पे रैशनलिज्म की बात आ गई. एक एम्पिरिसिज्म था जहाँ से इंट्रोस्पेक्शन ऑफ वुंड, एंड जहाँ से वॉटसन का बिहेवियरिज्म आया, एंड लेटर वुंड के बाद वुंड के स्टूडेंट टिचनर ने स्ट्रक्चरलिज्म इस्टेब्लिश किया. एंड द अदर पार्ट ऑफ फिलोसफी वॉज रैशनलिज्म दैट एम्फसाइजेस ऑन लॉजिक, ठीक है, एंड रीजन. तो गेस्टाल्ट स्कूल सेज दैट एक्सपीरियंसेस या बिहेवियर या कुछ भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम पार्ट्स में डिवाइड ना करें, ठीक है, उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड ना करें, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड ना करें, कंपोनेंट्स में डिवाइड ना करें, बस जो वो होल है एज अ होल, इट इज़ टू बी परसीव्ड लाइक दैट. Sigmund Freud was the founder of psychoanalysis. He was trained in neurology. Philosophical position not clear. ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉयड का क्या philosophical position था? Was he an empiricist or was he a part of rationalism? That is not clear because he was too scientific for philosophers and too speculative for scientists. ठीक है, मतलब philosophers जो थे
उनके लिए वो बहुत साइंटिफिक बातें करता था, एंड जो साइंटिस्ट थे उनके लिए वो ऐसी बातें करता था विच वर क्वेश्चनड. ओके, लाइक ही टॉक्ड अबाउट द अनकॉन्शियस. ओके, लाइक वो आइसबर्ग मॉडल जो है कि हमारे अनकॉन्शियस में जो सप्रेस डिज़ायर्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसकी वजह से बिहेवियर इफेक्ट होता है, राइट. तो दैट इज़ व्हाट सिगमंड फ्रॉइड इज. नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी. तो ह्यूमनिस्टिक सेज साइकोलॉजी सेज that humans have the capability to develop potential. Humans can develop potential. They can achieve their highest potential through their work. Okay, तो वहाँ पे फ्यूचर में जाने की बात की जा रही है कि फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है मेरा, मैं क्या कर सकती हूँ, what I can achieve. I will work now to achieve that. ठीक है. It was critical of the use of scientific method because उसमें मेंटल प्रोसेसेस की बात की जाती है, उसमें माइंड के पार्ट्स की बात की जाती है, कॉन्शियसनेस की बात की जाती है, बट ह्यूमंस को एक मशीन की तरह देखा जाता है बेसिकली. ओके, तो दैट इज़ नॉट द केस. ह्यूमंस आर नॉट मशीन्स. दैट इज़ व्हाट ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी सेज कि ह्यूमंस हैव फ्री विल. दे कैन डिसाइड कि वो क्या करना चाहते हैं एंड दे कैन प्रोसीड. So that is what humanistic psychology says. Next is William James. William James thought that psychology should focus on the study of consciousness. He realized, तो विलियम जेम्स बेसिकली जो बोला उन्होंने कि माइंड जो है, माइंड क्या करता है, what does the mind do. तो इट आगे चल के द स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म वॉज एस्टैब्लिश्ड. जैसे कि पहले स्ट्रक्चरलिज्म एस्टैब्लिश हुआ, बिहेवियरिज्म हुआ, सिगमंड फ्रॉइड का साइको एनालिसिस हुआ, वैसे ही विलियम जेम्स के बाद ही डिड नॉट डू इट, बट उनके आइडियाज़ को लेके, आइडियाज़ को बेस बना के फंक्शनलिज्म एस्टैब्लिश हुआ. ओके, ही रियलाइज्ड कि जो साइकोलॉजी उस टाइम था इट वाज इनएडिक्वेट टू स्टडी द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. मतलब he was not satisfied with the psychology that was there at that time, so he quit the discipline. But उनके जो contribution है that were very significant because it later went on to establish the school of functionalism. Historical perspectives. Till now we studied the philosophical perspectives, philosophical context. Now we will study the historical perspectives. पहले मैंने क्या बोला था कि why we should study the historical perspectives. We need to study that because we need to know why the different psychologists chose the different philosophies. Why Sigmund Freud, why Watson chose, empiricism. Why William James chose rationalism. क्यों चूज़ किया? इसके लिए हमें historical perspectives पढ़ने की ज़रूरत है कि उस टाइम क्या ऐसे situations थे. According to the traditional approach, history means an objective account of past happenings. What is the definition of history? According to the dictionary or the traditional approach, history is the objective account of past happenings. But historians make models to explain past events. कैसे models? See, there is a historian called E.G. Boring. He gave two models, the Great Man and the Zeitgeist model. ओके, तो ग्रेट मैन में ये बोला गया है कि हिस्टोरिकल चेंजेस ऑकर ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स एंड एफर्ट्स ऑफ ग्रेट पर्सन्स. यहाँ पे बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी चेंजेस हुए इन हिस्ट्री, लाइक फॉर एग्जाम्पल नेपोलियन, वाई डिड ही वॉन्ट टू कॉन्कर so many places. Okay, so Napoleon conquered a large part of Europe. So that is a historical change. Now, why did it occur? Because Napoleon was a great person. He was an excellent warrior. Okay, Napoleon was a great person and that is why he conquered. This is the great man perspective. But इसी example को पकड़ के रखना, Zeitgeist model में spirit of times की बात की गई है कि Napoleon conquered not because he was a great man, but because the situations at that time were such that he had to do what he did. ठीक है, मतलब क्योंकि नेपोलियन में भी उस टाइम लीडर ऑफ द आर्मी बन गया एंड क्योंकि वहाँ पे सिचुएशंस इस तरह के हुए थे कि कोई भी लीडर ऑफ आर्मी अगर बनता तो वो वही करता जो नेपोलियन ने किया है. तो दैट मीन्स कि सिचुएशंस
are more important than the person. Okay, this is the Zeitgeist model. It attributes historical changes to historical forces, makes room for psychology in non-Western contexts. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशंस की बात की गई है तो सिचुएशंस में कल्चर, सोसाइटी, इन सब को कंसिडर किया जाएगा. तो आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है दैट इज़ द करेक्ट वन. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप ग्रेट मैन मॉडल में बोल सकते हो कि वॉटसन फाउंडेड बिहेवियरिज्म, एंड फिर बिहेवियरिज्म को आप इम्पोज कर दो पूरी दुनिया पे कि सब लोग बिहेवियरिज्म फॉलो करेंगे. लेकिन ज़ेइटगेस्ट मॉडल में ये नहीं कर सकते. ज़ेइटगेस्ट मॉडल में आपको सिचुएशंस को लेना पड़ेगा. तो आप अगर किसी और कल्चर पे अगर इम्पोज कर रहे हो कोई स्कूल ऑफ थॉट, देन यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट द सिचुएशंस, द सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कल्चर. ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट मेक्स रूम फॉर साइकोलॉजी इन नॉन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट्स. थॉमस एस कुन, he wrote a book, The Structure of Scientific Revolutions. In that book, he said that the cultural and social forces involved in the development of a paradigm model of science. Now, what is paradigm? Paradigm means any framework or system of thought about human nature. Okay, so any school of thought, any system of thought, any framework, any structure about human nature, उसको paradigm बोला गया है. एंड एक नया पैराडाइम डेवलप करता है, एक स्कूल ऑफ थॉट डेवलप करता है अकॉर्डिंग टू द ज़ेइटगेस्ट मॉडल एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस और ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ ओल्ड पैराडाइम टू एक्सप्लेन न्यू फाइंडिंग्स. तो क्यों डेवलप करता है एक नया स्कूल ऑफ थॉट? एज आई सेड बिफोर कि सोशल और कल्चरल फोर्सेस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक नया स्कूल ऑफ थॉट इवॉल्व करता है. नाउ द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न थॉट. Now, why Western thought dominates? Dominance of empiricism and ideology of individualism. Historical events, industrial revolution, colonization. तो देखो, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, कहाँ पे हुआ? वेस्टर्न सोसाइटी में हुआ, राइट? एंड वेस्टर्न सोसाइटीज़ ज़्यादा कोलोनाइज करते थे. इंडिया वाज ऑल्सो अ कॉलोनी. तो उनके जो आइडियाज़ थे उस टाइम, उनके जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे थे, उनके जो आइडियाज़ थे वो बाकी के दुनिया पे इम्पोज किए गए. क्यों? क्योंकि दे हैड द पावर एट दैट टाइम. पॉलिटिकल पावर जिसके पास था उसके आइडियाज़ आप इम्पोज कर सकते हो बाकी दुनिया पे. सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डोमिनेशन ऑफ एम्पिरिसिज्म एंड उनकी आइडियोलॉजी है इंडिविजुअलिज्म. व्हाट इज़ इंडिविजुअलिज्म? इंडिविजुअलिज्म सेज दैट द इंडिविजुअल हैज़ राइट्स एंड is separate entity from the group. ठीक है, मतलब आप, मैं, हम अलग है एंड मेरे अपने राइट्स है एंड दैट इज़ ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस. इंडिविजुअलिज्म का अपोजिट होता है कलेक्टिविज्म, विच सेज दैट आई एम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप एंड माई राइट्स डज नॉट कम अबव द राइट्स ऑफ द ग्रुप और द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप. ठीक है. Western societies became important centers for scientific knowledge production. Now, as I said कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे हुआ, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रहे थे. दैट इज़ वाई दैट वेस्टर्न सोसाइटी वॉज गिवन इम्पोर्टेंस एंड देयर थाट्स वर इम्पोज्ड ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज्ड ओवर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या colonization. Scholars in non-Western countries trained in Western countries and propagated Western psychology. जो non-Western countries के भी scholars थे, they were trained in the Western countries, ठीक है, and so that is why they propagated their views. ठीक है, सबने नहीं किया, but there were many scholars who propagated their views. Development of non-Western psychology. साइकोलॉजिकल, देखो यहाँ पे दो चीज़ें, एक है डेवलपमेंट ऑफ नॉन वेस्टर्न साइकोलॉजी एंड एक है साइकोलॉजी प्रैक्टिस बाय नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़. बुक में इन दोनों में डिफरेंस दिया गया है. सो डेवलपमेंट ऑफ नॉन वेस्टर्न साइकोलॉजी सेज द साइकोलॉजिकल सिस्टम्स दैट ओरिजिनेटेड इन नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ टू एक्सप्लेन ह्यूमन नेचर एंड बिहेवियर. जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ है उनके अपने क्या सिस्टम्स थे जो आए टू एक्सप्लेन ह्यूमन नेचर एंड बिहेवियर. ठीक है, बट साइकोलॉजी प्रैक्टिस बाय स्कॉलर्स ऑफ नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ क्या बोलता है कि प्रैक्टिसेस ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी अडॉप्टेड बाय स्कॉलर्स ऑफ नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़, कि वेस्टर्न साइकोलॉजी के क्या ऐसे प्रैक्टिसेस है जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटी में उनके कॉन्टेक्स्ट के
अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो एक क्या बोलता है, एक बोलता है कि नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में क्या सिस्टम्स आए, एंड दूसरा सेकंड ये बोलता है कि वेस्टर्न सोसाइटी के क्या ऐसे थॉट्स थे या प्रैक्टिसेस थे जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटी में अडॉप्ट किए गए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशंस के बारे में बोलूँगी मैं, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ऑफ चाइना, एंड ऑल्सो नॉन वेस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न फिलोसफीज़। तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप you liked the video. So keep studying and we'll meet next in the next lecture.